हाँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था जब ये पिक्चर ऑफर हुई थी, ड्रीम गर्ल एंड मैं, outstanding. I'm like, this is it. This is the film I'm going to do next. And then I read the script. And I said, Raj, who's the director, I said, आप गलत कर रहे हो कुछ. एक second. Dream girl है, dream boy नहीं है. Are you not understanding this? But you have to expect Ayushmann to do this. And I am absolutely thrilled and supremely happy to say that he is the hero and the heroine of this film. Yay! Yay! So where is Pooja? I need to know where Pooja is. Is Pooja going to come here? Come on, make some. मैंने लुक किया था और एक साड़ी में ये है. मैं इतना डाइट क्यों करती हूँ आयुष्मान? Like why? यहाँ पे साड़ी के साथ दाढ़ी भी है, बात ये है. सिर्फ साड़ी होती तो बात अलग थी, दाढ़ी साथ में, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे. Wow, welcome. दाढ़ी नहीं, यहाँ पे दाढ़ी है अभी. जी. I'll take this. All right, so Pooja is here. अब बजाओ सीटियां. कौन बजा रहे थे वो? पूजा को देख के, हाँ? सीटियां, तालियां, हाँ? पूजा, I love you. चालू था ना इन लोग का? Love you too. कहाँ से आवाज आई? All right, so it's time to invite on stage the people behind the Dream Girl and Pooja, and of course the entire Kamal ki cast and crew. Before we open the house for media interaction, यहाँ पे मेरे पास कुछ सवाल है, and we'll start with Pooja, Ayushmann Khurrana. Ayush, congratulations first of all. Thank you, Nitin. जो national award-winning actor, जोरदार तालियां बनती है यार. You know, we all know the way he started. It was like he's always been very grounded. I know him तब से अब तक, and it's amazing. The journey has been amazing. हमने जो देखी. What do you have to say? Nitin, it's been a very long and fruitful journey, of course. और रेडियो से शुरू किया था. अब of course अब television, फिर film, and national award is part of the bucket list of every actor जो मुंबई आते हैं. आप सोचते हैं कि अब राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया जाएगा. लेकिन जब आप नहीं सोच रहे होते तभी आपको मिल जाता है. मुझे पहली फिल्म से यकीन था कि शायद विकी डोनर मिल जाए. वो वहाँ पे अन्नू कपूर को मिल गया. वो भी हमारी फिल्म है अभी. लेकिन of course with Andhadhun you don't, after that you don't do films with that agenda कि आपको awards के लिए फिल्म करनी है. आप बस honestly ईमानदारी से फिल्म करते हैं और आपको मिल जाता है. So yeah, I'm blessed that I have been working with great directors. The kind of scripts you choose, you know, वो बड़ी हटके होती हैं. वो scripts आती हैं या आप जाते हो वो नहीं पता. लेकिन इस आवाज में, उस आवाज में, इस रूप में, उस रूप में, you've been, you know, killing it. What do you have to say इस मेहनत के बारे में यार? मुझे लगता है वो दोनों एक जगह आके मिल जाते हैं. मैं कभी स्क्रिप्ट के पास जाता हूँ, कभी स्क्रिप्ट मेरे पास आती है. जब मैंने ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सुनी थी, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं नेक्स्ट डे कॉल कर दूं कि किसी और के पास स्क्रिप्ट ना चली जाए. तो मैं रुचिका को कॉल किया था मैंने, एंड आई वाज लाइक, यार दिस इज अ ब्लॉकबस्टर, आई वांट टू डू दिस. क्योंकि मैंने बोला ये मेरे लिए काफी कमर्शियल है. तो कहती दैट्स नॉट अ बैड थिंग, ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स आई वांट टू just tread in a different territory altogether, and this is right up there, so was really excited. And Raj ki narration kamal ki thi. It's too good यार. है ना? Congratulations he to the. cons it. His narrations are cons. Let me tell you. अच्छा. He had narrated it completely differently, and I'm like, एक second script दो तो जरा दो तो. Then I'm like, what? So आप ही से पूछ लेता हूँ मैं. Who was the bigger diva on the set? Like you or him/her?
Come on. I think I'm going to break myths. We can break Don't slash myths, me. right? We girls are not divas. I'm telling you that very clearly. He was definitely the diva on set because his lehenga, his sari, his makeup, his hair, his nathni, like you can see in the film, took so much time that he came on set and he said, "How do you girls do it for 2 hours?" And I said, "That is normal for us." Now you're realizing how difficult it is. And didn't you have to wear heels? No. No, we saved that little bit for you. And he actually asked me, he said, "ये घाघरे में ऐसे लचक के साथ कैसे चलते हो?" तो मैंने कहा, "आ जाओ, ट्यूटोरियल्स करते हैं." तो ऑफ कोर्स गाने से पहले से चलना था तो फिर उन्होंने सिखाया सब मुझे सिखाया। नुसरत ने बट यार बहुत मेहनत लगती है आई थिंक लड़कियां जो होती हैं दे आर फार बेटर सेक्स देन फार बेटर जेंडर देन मेल्स फॉर श्योर मैं मानता हूँ इतनी मेहनत तो यार Thank 2-3 you. घंटे 3 लड़कियां तैयार करने में लगती थी मुझे तो साड़ी पहनना आसान नहीं है राइट बिल्कुल नहीं है दिख रहा है और जो आपने लटके झटके मारे वो भी आसान नहीं है यार लोगों के दिल हिल रहे हैं यहाँ पे एकता जी दिस वंस फॉर यू प्लीज टेल अस यू नो फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग you've done that कि फिल्म्स अलग हों हटके हों और द प्रमोशन का तरीका हटके हो you've mastered the art right नहीं मैं कुछ और बात नहीं I mastered the art. Thank God I wasn't there. Okay, so please tell us कि इसमें what made you think कि भैया आयुष्मान ही है मेरी dream girl? Honestly, Ayushman nahi hai meri dream girl. but Ayushman, when we heard the script, I heard it from Raj, and of course I was on the floor. And Ruchika and I had this conversation. Who? I said, you need only one actor. I think who can do this kind of voice modulation. Who will work that hard? And I didn't even know Ayushman well. Both of us have not even we had not even met. We met one very weird way earlier. And I'm not going to discuss that. But I was so sure. I told her, just do me a favor. That man bets on scripts. I said he will not see how big the director is, उसका resume क्या है, उसे कितनी 50 फिल्में की हैं, वो script पढ़ेगा. She said, "Are you sure?" I said, "I'm telling you," and he will find in himself the ability, and it takes a lot to be a woman. Really, really talented man to be a woman. Oh, super. We are ready for another blockbuster with this dream girl, ladies and gentlemen. और जिनके सपनों में ये आई होगी सबसे ज्यादा पहली बार और बार-बार लगातार राज शांडिल्य जोरदार तालियां for this धमाकेदार debut. राज भाई प्लीज टेल अस कितनी बार आपने उन दिनों में इन दिनों में लोगों को फोन लगाए हैं ऐसे रात को मुझसे बात करोगी? How many times have you done this? नहीं मैंने लगाया मुझे आए लोगों के फोन हाँ जैसे? बहुत फोन आते हैं मुझे हाँ लोग मैं भी बात करता हूँ लोगों से और कई दफा मैंने देखा भी है लोग लड़की के बाद में बात करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बहुत मैंने नहीं किया हालांकि वो सब चीजें लेकिन ऐसा हुआ है ऐसा देखा है और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहली दफा कर रहे हैं इस किस्म का लेकिन लोगों में होता है आप फेसबुक ट्विटर अगर पे जाके देखें लोग चैट करते हैं एंजल प्रिया बन के एंजल पूजा बन के कर लेते हैं तो वो पूजा और प्रिया यही है बट विजुअली जो आपको नजर आएगी फिल्म में तो ऐसा है कि इनके लिए तो हम लोग फिल्म लिख रहे थे हमारी पूरी कोर टीम के लिए बजोर तालियां बजा दें लोग निर्माण निकेत संकेत ऑफ कोर्स अक्षत एंड एवरीबॉडी तो पहली बार जब हमने ये जब लिखा तो जहन में सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान खुराना ही थे कि इनके साथ ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे और अब कर ली तो दैट्स द थिंग एंजल प्रिया मैंने कुछ नहीं बनाया इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैंने तो आपको नया नाम दिया आयुषी मैं न्यू आयुषी सर मत करो सर. तो ऑफ कोर्स वी हैड अ ग्रेट टाइम और बहुत अच्छी तरीके से हम आयुष्मान नुसरत और बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई होप यू विल लव इट So was it like difficult convincing Ekta ji and team for the movie or was it like नहीं यार ये तो करना ही है और कर ही डालते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इतने 25 साल से इंडस्ट्री में हैं और एक बार बालाजी टेलीफिल्म्स That के made me feel 25 like साल a हुए हैं उसके person. जोरदार तालियां बजा दें एक बार आप लोग और मुझे हमेशा से ये लगता था कि बालाजी के साथ एक ऐसी फिल्म क्योंकि बालाजी की मैं सीरियल्स देखता आया था तो उसमें सिर्फ आंसू ही आंसू नजर आए थे मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी प्रोड्यूसर को मैं एक फिल्म सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने शायद कभी हंसी वसी वाली से आपने और बालाजी देखा है? हाय हाय तो हमेशा मैं जब उनको सुनाने गया तो हमेशा से मुझे ये था कि रुचिका को जब मैंने पहली दफा ये बताया कॉन्सेप्ट और उसके बाद उन्होंने कहा कि एकता जी के साथ नरेशन है आपकी मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं और एकता जी की इमेज मेरे जहन में ऐसी थी कि तलवार लेके आएंगे अभी और बोलेंगे हाँ बताओ क्या है बोलो लेकिन नहीं मैं जितने भी प्रोड्यूसर से मिला हूँ उसमें सबसे ज्यादा स्वीट हम्बल और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने वाली एकता कपूर है
तो इनके लिए जोरदार तालियां। और उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और इमीडिएटली उन्होंने बोला कि यस, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म। One very important part about this film is that it's not about sexual calling. It's about making other people feel good. We live in a world, हम जिस दुनिया में रहते हैं, रोज लोग हमें नीचा दिखाते हैं, चाहे काम पे हो, बॉस हो, कभी कभी वाइफ हो, कभी कभी हस्बैंड हो. Your family, without knowing, gaslights you so much, and you yourself lose yourself. And sometimes just telling your problem to a stranger, or hearing that, you know, you are so sweet, why don't you take a minute and relax, can make so much of a difference to any sex. Great. Wow. Sir, any special comments हमारे ड्रीम गर्ल के ऊपर? सर कभी कभी लगता है 2 पैक लाके मैं ही फोन कर दूं। कमाल लगती है, मतलब जबरदस्ती। थोड़ा थोड़ा अभी तो ये दाढ़ी बाड़ी है, जब एकदम चिकना देखोगे ना आप खर्चा कर डालोगे। मैडनेस तो देख लिया आपने, इनका ह्यूमर भी देख ही लिया है, कितना अमेजिंग है। तो पूरी फिल्म में जो डायलॉग्स हैं, जो पंचेस हैं, जो सब इन्होंने लिखे हैं और बहुत ही बेहतरीन लिखे हैं। आई होप आप सबको बहुत मजा आने वाला है फिल्म में। I'm sure. जोरदार तालियां हो जाए I यार think for you this should amazing also call cast. the producer on stage. Yes, yes, Ruchika. yes.
she categorically told me मेरे को नहीं आना. Ruchika, you are the producer. Please come on stage. Please, Ruchika, come on. You We'll have take to do this offline. Come on. Give it up for Ruchika Kapoor, ladies and gentlemen. Please, Ruchika. And I'll come to you. I have a question for you also, Ruchika. I'll come to you, but before that, ये हरियाणा का जस्टिन बीबर से बात करेंगे. What do you have to say? Finally, do you get like पूजा मिलती है या? वो तो पता नहीं अभी मैं बता पाऊंगा कि नहीं, but I think once you guys see the film, hopefully you will get to know किसको मिलती है. Right, you know, उनके साथ ऐसा एंट्री करना फिल्म के अंदर, ड्रीम गर्ल का हिस्सा बनना, how was it for you? जैसे कि टाइटल है ड्रीम गर्ल, it was my dream to be in such a big film also. Yeah. So I'm really thankful to Ekta ma'am and even Raj sir and the entire Balaji production house and the people associated with the film. Right. And I mean, what else can I say? It's really an honor to be here. All I can say is that this is looking fantabulous on the big screen, and it's such an honor for each and everyone to be a part of this amazing project, I'm sure. I'll go to Abhishek. Abhishek, what do you have to say? You know, इससे पहले भी we've seen you, you were part of this blockbuster, और अभी ये तो this is gonna go like एक अलग level पे, I'm sure. Amen. है ना? So what do you have to say, being a part of this film? I think I had a lot of fun. वही मतलब शूटिंग के टाइम में बहुत मजा आया. राज सर खुद जब सुनाते थे नरेशन के टाइम पर जो उनकी जब टाइमिंग होती थी, मुझे लगता था कि वो टाइमिंग मैच कर पाएंगे हम एक्टर्स, क्योंकि ही इज एक्चुअली हिज टाइमिंग इज वंडरफुल. या और बस आई मीन वी ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन. एंड In real life, what do you prefer, sir? Video calls या phone calls, audio calls? ऑडियो चल. मुझे पता है क्यों बोला, वो दिख रहा था वहाँ पे. नहीं, रुचिका, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं पूरे फिल्म में तो ऑब्वियसली आयुष्मान सर के साथ यू नो वी एक्टिंग करे और सब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से चल रहा था. डबिंग के टाइम पे सडनली आई हर्ड हिम यू नो टॉकिंग लाइक पूजा, और उस दिन मेरे को सच में दिल में थोड़ा सा कुछ हुआ कि यार ये आवाज कहाँ से लाते हैं आप. तो उन्हीं से पूछ लेते हैं आवाज कहाँ से लाते हैं. Give it up for Ayushmann Khurrana, ladies and gentlemen, one more time. The ever so handsome Ayushmann Khurrana. Hi. Welcome, Ayush. How difficult was it? चलो अब ऐसे भी पूछ लेता हूँ आवाज में जाना, because that the modulations that एकता जी were talking about, कि वो it's not easy, you know, वो आवाज को बिल्कुल चेंज करना, और सच में लड़की की आवाज लग रही है. How difficult was it? यार रेडियो का बहुत फायदा हुआ है ऑफ कोर्स, और माइक के पीछे बहुत बार गए रेडियो में और वापस डब किया अपनी आवाज़ को, क्योंकि नॉर्मली जब बात करते हैं तो आप वो थोड़ी सी खराश आती है हाँ. मर्द वाली, लेकिन जब आप माइक के पीछे जाते हैं तो आप कैरेक्टर में जाते हो, अंधेरे में जब डब करते हैं जिस फील्स बेटर एंड यू sound like a woman. It's fantabulous, you know. It's सौ में सौ. So now it's over to you, wonderful people. आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं. And we start with जी. आयुष्मान जी. हाँ जी. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. First of all, congratulations to you and the team. Trailer is fantastic, and Paji, congratulations to you as well for the national award. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि आप जैसे पूजा बन के आप जैसे करते हैं, मतलब कॉल वॉल, सच बताइए आपने कॉलेज के टाइम पे ऐसे प्रैंक्स किए थे? यार कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में ऐसा हुआ था. कॉलेज में तो ऑफ कोर्स, पर स्कूल के टाइम मुझे याद है, आई थिंक आई वाज इन 10th एंड देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज इन 9th. तो वो हम दोनों लड़की की आवाज़ से ना, अंकल ने फ़ोन उठा लिया, लड़की गर्लफ्रेंड के पापा ने उठा लिया, तो तब हम लड़की की आवाज़ की कैन वी जस्ट टॉक टू हर, सो और आसान हो जाता था. Okay. Another thing, जैसे एक scene था यहाँ पे, तो आप हैं और बाकी सब कैरेक्टर्स हैं, सब रामलीला के कॉस्ट्यूम में हैं, एंड यू एक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक क्लाइमैक्स का सीन है या समथिंग वेयर यू नो द रिवीलेशन इज देयर. तो कहीं ना कहीं वो जाने भी तो यार की याद जरूर दिलाता है जो हम रामलीला की सीन की अगर बात करें. सो इज इट अ काइंड ऑफ होमाज पेड टू द आइकॉनिक सीन? आई थिंक ये राज को बताना चाहिए. आई थिंक वो क्लाइमैक्स सीन तो नहीं है, लेकिन राज यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट? एक्चुअली जब भी हम रामलीला और उसकी बात करते हैं तो जाने भी द्वार में एक्चुअली महाभारत थी. आप अगर देखें तो, और वो महाभारत का वो जो सीन है उसको कहीं हम कंपेयर नहीं कर सकते उस सीन से. वो एक आइकॉनिक सीन है, वो ऑलरेडी हो चुका है. तो ये हमारा अपना एक अलग टेक है इस पे. तो आई होप कि जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस किस्म से कॉमेडी की है, उसमें किरदार क्या 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 कर रहे हैं उसमें. नुसरत, you're known as the Panchnama girl, so what do you want to say about Dream Girl? मतलब ये जो Dream Girl है इसमें आप हैं, लेकिन सारा ग्लैम तो पाजी लेके जा रहे हैं. अरे 100%. But I think कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसे. कोई नहीं तो बोल सकते. I think even in Panchnama, when the film came, nobody expected that the girls would do that, and I think that's been what I've been doing. कि जो तुम नहीं सोचोगे वही आएगा. So even when the title came out, people thought I would be the dream girl first, but it's not.
So I like it. I think on a larger scale, the film has to be the most important. That for me, that is the star, that is the central character. And to be a part of an amazing film is always going to be my first priority. And when I heard the narration, it was the easiest casting I think I've ever been to. I walked into Balaji, I met Ruchika, I met them, they gave me a narration, and he really is a con artist. He can really convince you. And I heard the narration and I said I'll do it. And Raj is like, okay, done. I said, okay, done. Ruchika, okay, dates, done. Okay. And I was on set shooting. It was as simple as that. So, yeah, I think that is what you're going to see in this. A completely different side. आयुष्मान, मेरा सवाल आपसे है कैसे मैम जैसा आप? कि ठीक हो, होस्ट ने जैसे आपसे सवाल किया था कि आपने डे 1 से जो आपका करियर का ग्राफ देखें तो आपने एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स को तवज्जो दी है. हमारे ज़माने में ऐसा अमोल पालेकर किया करते थे और बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं. तो ये जो आम आदमी के डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, पर स्टारडम का जो ये मुकाम है, इसमें कभी डर लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल या कामयाब ना होगा या होगा? आई थिंक इससे हिम्मत आती है आपकी. जब फिल्म सक्सेसफुल होती है आप में और करेज आता है. यू बिकम मोर ब्रेव विद योर चॉइसेस. जब आपको लगता है कि आपको वैलिडेशन मिल रही है जो आपने स्क्रिप्ट चूज़ की हैं और लोगों को पसंद आ रही है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे, तो उससे आपको और हिम्मत मिलती है कि कुछ अलग करने के लिए. एंड ड्रीम गर्ल इज़ अगेन दैट फिल्म. और बीच बीच में आम आदमी नहीं बनना, चाहे वो आर्टिकल 15 में आम आदमी नहीं था मैं, अंधाधुन में नहीं था, इट इज़ वेरी डिफरेंट. पर हाँ, यहाँ पे एक आम आदमी है. वही हमारे देश में एक प्रथा रही है, रामलीला जब भी होती है लड़का ही सीता बनता है. तो इस बात पर हमने कभी तवज्जो दी नहीं. इट इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर ऐसा कहीं नहीं होता है, हिंदुस्तान में होता है. तो हिंदुस्तान की कहानियाँ होती हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं और लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात क्यों नहीं की अब तक. तो वो उस तरह की मैं फिल्में करना चाहता हूँ. Check. Hi, Ayushman, this side. First of all, amazing trailer, I should say. मैं इतने punches थे कि मैं हंस रही थी सिर्फ. And congratulations for the national award. Thank you. एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, आपने रेडियो से जो मॉड्यूलेशन है वो तो कहीं ना कहीं सीखा ही, but then it has helped you. But then जब आप राधा, सीता जैसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आपने कहीं ना कहीं लाया होगा. किस तरीके से आपने ऑल ओवर प्रेप किया ड्रीम गर्ल के लिए? आई थिंक इट इज़ ऑल इन द लाइन. जैसे आपने बोला पंचेस बहुत हैं, पंचेस राज शांडिल ने लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं, और पंच नामा गर्ल भी हमारे साथ है. तो पर यहाँ इस फिल्म के अंदर You see the relevance now of it? There you go. He did it for me. But nevertheless, I think when you're actually behaving like a girl or maybe sounding like a girl, तो आप अचानक ही आपकी body language change हो जाती है. And इनकी narration जब मैंने सुनी थी, जैसा इन्होंने किया था, I'm a director's actor, मुझे ऐसा लगता है, मैं director की vision follow करता हूँ हमेशा से. And this was part of that also. At the same time, आपको एक legible, एक credible लड़की sound करना है, so that like men are also going gaga over you. So it was of course challenging for sure. Also, just one compliment, ड्रीम गर्ल जो है वो हेमा मालिनी जी को माना जाता है अभी भी, but then एक नई ड्रीम गर्ल हमें इंडस्ट्री में मिल गई है. I should say that. नहीं, वो ड्रीम गर्ल ही हैं जो हैं, और उन्हीं को एक ट्रिब्यूट है ये फिल्म हमारी. Thank you so much. Thank you. Ayushman, here. Ayushman, congrats on winning the national award. Thank you. ये तो बहुत पहले ही मिलना चाहिए आपको. लेकिन इतने सारे कमर्शियल अवार्ड जो आजकल होते हैं, डे बाय डे अवार्ड्स का जो नंबर से बढ़ते जा रहा है, तो वो कितना वैल्यू रखता है आपने? फिल्म फेयर है, आईफा है, स्टार डस्ट है, इतने सारे अवार्ड्स हैं, और जिनको मिलता है वो डिजर्व करते हैं, आपको लगता है, जो अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी कैटेगरी में? आई थिंक बिल्कुल डिजर्व करते हैं. अगर कमर्शियल हिंदी सिनेमा में अगर आप देखें तो जिनकी फिल्में चल रही हैं वो किसी रीज़न से चल रही हैं, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं तभी चल रही हैं, नहीं तो नहीं चल सकती. और एक आर्टिस्ट एक बच्चे की तरह होता है. यू हैव दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी. जब भी आपको अवार्ड मिलता है यू गेट रियली एक्साइटेड. और बट नेशनल अवार्ड इज समथिंग एल्स बिकॉज इट इज़ विद द नेशन, और उसकी अनाउंसमेंट टेलीविजन पे सबके सामने होती है. इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, लोग आपको बताते हैं आपको मिल गया अवार्ड या फिर आपके इतने नंबर आए हैं. सो इट जस्ट द सेम कॉनोटेशन, वही रेलिवेंस है. एट द सेम टाइम आई वाज शूटिंग दैट टाइम जब नेशनल अवार्ड पता लगा मुझे मिला है. एंड जब मैं शॉर्ट से वापस आए, इन लाइक 5 minutes देयर वर 40 मिस कॉल्स. मैंने कहा क्या हो गया 10 मिनट के अंदर. तो दे वर लाइक फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स. देन आई स्टार्टेड रीडिंग द मैसेजेस, तो पता लगा नेशनल अवार्ड मिला है. सो इट वाज like a weird excitement, क्योंकि मैं अब जाहिर भी नहीं कर पा रहा था. I didn't get that moment with myself because I was surrounded with 50 people. तो but I'm still trying to just digest that.
ओके मेरा सवाल राज शांडिल्य जो डायरेक्टर हैं सर आपने बहुत सारी इधर आपके लेफ्ट पे एक्चुअली आपने बहुत सारी कॉमेडी सर्कस के आप हमेशा ही राइटर रहे हैं तो क्या बहुत मुश्किल था इस फिल्म के बारे में मतलब कहाँ आप स्टक हुए या फिर जो आपकी स्क्रिप्ट रही हैं वो कितनी इम्प्रोवाइज हुई हैं ऑन लोकेशन? कॉमेडी सर्कस हो या बाकी जितने भी शोज हो आपने देखा होगा हम लड़कों को लड़की बनाते रहे। ट्रू। तो इसमें उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अब पर्दे पर उस चीज़ को अलग तरीके से पेश करना वो एक चैलेंज था कि 2 घंटे की फिल्म में वो सब चीज़ें बोलना वो सब चीज़ें कहना जो हम कहना चाहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन हाँ अगर आपके पास एक्टर बहुत अच्छे हों तो वो ना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए आयुष्मान और बाकी जितने भी लोगों ने इस फिल्म में एक्टिंग की है वो इतनी नेचुरल है कि आपको कहीं लगेगा नहीं कि हमने किसी को जबरदस्ती लड़की बनाया है तो वो एक चैलेंज था। लेकिन अंदर से आया मतलब अंदर से आया। हर एक लड़के के अंदर आदमी के अंदर एक औरत होती है तो वो औरत मैंने बाहर निकाल दी बस दैट्स इट और कुछ नहीं। That's it. रुचिका हाँ जी मेरा सवाल आपसे ये है कि एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर व्हाट यू वांट टू से व्हाट या आपको बोलना पड़ेगा व्हाट्स योर टेक ऑन बीइंग पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट such a project जहाँ पे content is the real king and we have talents like Paji and Nusrat. What do you want to say about it? See, I believe that when we decide to make a film, in 2 lines we need to know what the film is all about. In 2 lines, when I heard what this film was about, it was different, it was fresh, it was new, and it was entertaining. And the only thing I've learned being with Ekta is that film में 3 चीजों पे चलती है. Entertainment, entertainment, और entertainment. So I think that was the reason why we decided to be a part of this film. Thank you for your question. आयुष्मान कई बार ऐसे कई सेलेब्स होते हैं नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा जो जिनको कभी फोन करो तो वो लड़कियों की आवाज में खुद ही बताते हैं कि मैं उनकी मैनेजर बोल रही हूँ और आप इस समय कई ऐसे हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी रिपोर्टर ने फोन किया हो या किसी इवेंट्स के लिए आपको क्वेरी आए हो और आपने लड़की की आवाज में बात की हो? यार अब तक तो नहीं हुआ वैसे आगे का पता नहीं लेकिन आई डोंट नो। और एकता आइडिया अच्छा है वैसे यार बट आप पकड़े जाओगे Thank you. आप पकड़े जाओगे अब पीपल नो योर वॉइस एज अ गर्ल बोलूंगा पूजा मैनेजर है मेरी। एकता All right, before I'm so sorry, I'll just come back to you. We also have the co-producer with us, Nachiket Pantvaidya. Give it up for him, ladies and gentlemen. Oh. So sorry, I'll come back to you. Welcome, Nachiket, and congratulations for this blockbuster to be. Yes, sir. एकता ऐसे गबरू जवान जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है उनको आपने पूजा मैडम ड्रीम गर्ल बनाने का सोचा कैसे? सोचा उन्होंने but I think Pooja rocks. I think I called her a couple of times too. Sachi? Smoochie. Can we hand over the mic over there? ये जो पूजा थी जो हम लोगों ने ट्रेलर में अभी देखा वो बिना को एक्टर्स के इतनी उसका जो कैरेक्टर है वो उभर कर नहीं आता। तो जो दूसरे आर्टिस्ट है मंजोत है आप लोग कुछ शेयर करेंगे कि किस तरह से अपने कैरेक्टर को उस तरह से किया और एनीवन यू? हाँ जी बोलिए हाँ एक बार बताएं। जो पूजा का जो कैरेक्टर है उसको स्टैब्लिश करने में आप लोगों की भी बहुत जी पूरी टीम की मेहनत होती है हर फिल्म बनने में और आई थिंक स्पॉट बॉयज से लेकर एक स्टार कास्ट में हर एक बंदा जो वैनिटीज लेके आते हैं जो सारी मेहनत करते हैं उन सबकी मेहनत है नॉट इवन ओनली स्टार कास्ट। तो आई थिंक ये फिल्म जो बनी है सबके प्यार से बनी है और आई थिंक ये जब रिलीज होगी 13 सितंबर को आई थिंक जब भी एक फिल्म हिट होती है तो सबको फ़ायदा मिलता है उससे। तो इस फिल्म से सबको फ़ायदा मिलेगा जिनका छोटा रोल है जिनका बड़ा रोल है जो बिहाइंड द कैमरा है और जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो जितने भी टैलेंट्स हैं जितने भी हार्ड वर्कर्स हैं इसमें। Ayushman, straight here. Ayushman, could we see you do a puja live in front of us? Oh my God. Listen, वही मैं बोल रहा हूँ मैं कैमरा के आई थिंक माइक के जब पीछे जाते हैं तब वो डब किया मैंने अपनी आवाज़ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा शायद बट या आई शुड ट्राई आई नीड अ डार्क रूम। आंखें बंद कर लो मैं आप इसके पीछे जा सकते हो पोस्टर के। ओके फाइन आई विल ट्राई बट वो स्टूडियो में हम थोड़ा सा उसे बेटर कर देते हैं।
हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ और तेरा को मैं होंगी तेरी। Whoa! All right, in his Okay, first yeah. movie, Anu sir was his partner in crime, and यहाँ पे उनसे ये सब कुछ छुपा रहे, but unfortunately he's not here with us. He's not well. So Anu sir के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. Anu Kapoor साहब, come on. Anu sir and Vijay Raj sir, both. Yes, Vijay Raj sir is also not here. Excuse me, here. I'm raising my hand. Ayushmann Renuka from Bombay Times. First of all, Renuka. congrats for your national award. Thank Much you. deserving. And Irfan once told me that, you know, when an actor has an Oscar winner in front of his name, it's a big deal for him. Likewise, today when I read the papers, it was not just Ayushmann, it was national award-winning actor Ayushmann Khurrana. So tell me, what does that feel like, first of all? And I'll ask the second question after that. It's too overwhelming. It gives me heebie-jeebies, in fact. It gives me butterflies in the stomach. And I read that in the papers today. It was, yeah, quite surreal. I don't know what to say, seriously. But yeah, it's a good responsibility also at the same time. But will your approach towards your work slightly change given the kind of reputation you have earned over the years? I think it was always serious and approach towards the work. Otherwise, not very serious as a person in real life. But towards my work, I'm really serious and I'll always approach scripts with that mentality and sensibility. And it has worked till now. I hope it works in future as well. Ayushmann, just finally, before I give the mic to someone else, about a woman, like, you know, imitating a girl's voice, or what about it fascinates you the most when you observe women around, or what is that one aspect that you thought you had to include in your imitation of a woman's voice? They are just more compassionate as gender. They are more attached, though I don't believe in generalizations. I think men and women are same when it comes to everything in life. A lot of people ask these questions, how was it working with a female director or a female producer? I think there's no difference. Till the time we just take out those generalizations in our life, it'll be fine. But otherwise, I believe there's certain generalizations still. Like they are more compassionate, they are calmer, and that's about it. These are the qualities I imbibed while doing this character on screen. Thank you so much. Thank you. So we'll just take one last question. Yeah? Hi, Ayushmann, Justin here from PTI. Hi, Justin. Ayushmann, congratulations for the big... Congratulations for the big national award win. Thank you. You know, usually when there is an honor as big as this, usually a lot of reflection happens when one ponders over the past where one didn't have anything at all. If you can take us through the journey before Vicky Donor, when you were still giving auditions and perhaps getting rejected for really bizarre reasons from the producers. Do you recall one of those? To begin with, I think Vicky Donor's trailer was played in this Audi, and I just walked the same aisle. So I was telling this to my manager that, you know, this is like deja vu. I hope this also gets that success. And, you know, it was a hard-earned success. I'm glad it was like baby steps towards success, not just a phenomenal rise. So it just gives me more calmer head on the shoulders. That journey was very fruitful with the theater days and radio days and then television and then films. It's hard-earned, as I said, and I'm still enjoying that journey. I still have that childlike quality. I get excited when the poster or the trailer comes out and get equally nervous when the film is about to release. And I think it's important to maintain that. That's about it. Ayushmann, Ayushmann, two questions. Badhai Ho has also won in the most entertaining film national award, and also you're sharing the award with Vicky Kaushal. So if you can share something on that. You know, he was the first one to call me when I got to know about my national award. It was very sweet of him. I also wrote one message to him that he's such a gem of a person, and I'm glad that I'm sharing this award with him because he's very talented, and both of us are Punjabis, and we speak to each other in Punjabi because there are hardly any contemporaries I can talk to in my native language. So that's a lot of fun. We were together in Coffee with Karan also. We hosted a lot of award shows. So it's I have a friend in the industry for sure. Hi Ayushmann, Ravi from ABP News. Hi, कैसे हैं आप रवि? Fine, how are you? Very good. आयुष्मान, एक सवाल 2012 से जब आपने विकी डोनर की से शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में, हर एक एक्टर का एक ड्रीम रोल हुआ करता है या कुछ रोल्स होते हैं कि वो करना चाहते हैं, उस टाइप के रोल करना चाहते हैं. जब आपने कदम रखा था हिंदी सिनेमा में, आपने कुछ सोचा था कि आप कुछ ऐसे रोल्स करना चाहेंगे
जो अब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है या अभी भी आपके मन में है कि यार ऐसा किरदार करने को मिले? जब मुंबई आते हैं तो आप अपने दिमाग में रेफरेंसेस बना लेते हैं क्योंकि आपकी परवरिश हुई है हिंदी फिल्म में देखते हुए। और मैं पहले सोचा था कि मैं कभी हाँ कभी ना के शाहरुख सर का कैरेक्टर मेरे लिए ड्रीम रोल है, या फिर आमिर सर का जो जीता वही सिकंदर का कैरेक्टर ड्रीम रोल है। फिर मैंने सोचा अमिताभ बच्चन का शक्ति फिल्म का कैरेक्टर ड्रीम रोल है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्पर्म डोनर के रूप में आऊँगा सबके सामने, या फिर ड्रीम गर्ल करूँगा, या फिर अंधाधुन करूँगा, या आर्टिकल 15 करूँगा। मुझे लगता है आजकल स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। शायद जो मैंने सोचा है उससे 10 कदम आगे हैं मेरे लिए रोल लिखने के लिए, तो मैं सोचना बंद कर दिया मैंने। तो दे जस्ट सरप्राइज मी विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड लाइक राज हैज रिटन दिस कैरेक्टर फॉर मी, इट्स अनबिलीवेबल। इतना ज़्यादा बेबाक होकर मैंने कोई फिल्म नहीं की जो मैंने ड्रीम गर्ल की है, क्योंकि मैंने काफ़ी सटलिटी में खेला है अभी तक। दिस इज़ लाइक आउट देयर एंड इट्स लॉट ऑफ फन। Thank you. All right, I believe Sumit ji has a question. Where is he, sir? प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हो रहे हैं, उनके बीच में आपको सरवाइव करना, और वो भी इतने डिफरेंट तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, कितना आसान है और कितना मुश्किल है? आई थिंक मेरे कुछ ऐसे साल भी आए हैं जहाँ मुझे ऐसा लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, हमने डाउन साइज किया है, और कुछ ऐसे साल आए ऐसा लगा कि अब तो कोई हमें रोक नहीं सकता। तो आई थिंक अच्छे वक्त, माई फादर सेज दिस टू मी, दिस टू शैल पास। तो जब बहुत सक्सेस आ रहा है तो यू रिमेंबर दिस विल पास, और जब बहुत फेलियर आ रहा है तो यू रिमेंबर दिस टू शैल पास। Thank you so much, ma'am. जी, सुमित जी, where is he? जी, I've been एक तो told. जैसे कि ऑडियंस, ये जो ट्रेलर हमने देखा बहुत ही अच्छा था और लोगों को पसंद भी आया। आपने देखा हो हर जर्नलिस्ट, कैमरामैन, फोटोग्राफर सबने क्लैप किया इस ट्रेलर के लिए। और ऑडियंस होती है जो फिल्म को डिसाइड करती है, और इसके पहले जो आपकी फिल्म आई, कुछ ऑडियंसेस ने उसको जज किया और कुछ ने मेंटल कहा उसे। क्या कहेंगे इस बारे में? ऑडियंस की राय है, क्या कर सकते हैं। मेरा काम है काम करना, आपका काम है जज करना। I will not stop doing my job, and I'm okay for criticism. Good afternoon. Thank you, Nitin ji. Sir, pleasure. Nusrat, in addition to being looking stunning, आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं, and उस ब्रैकेट में भी हैं रेवेन्यू जनरेशन के, जो कि एक लैंडमार्क माना जाता है। आपकी 4-5 फिल्में भी आ रही हैं, अब आने वाली हैं। आपको कभी ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे प्रोडक्शन के साथ फिल्म करेंगे जिसका 25वां साल होगा, एक ऐसे अभिनेता के साथ जिसके राष्ट्रीय पुरस्कार, रुक जाइए मैम, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार, ऐसे अभिनेता के साथ में जिसका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा होगा, एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म होगी और इतनी अच्छी होगी, एक नए प्रोड्यूसर्स होंगे, अभिषेक होगा, राज होगा, नवजोत होंगे। सुमित सवाल पूछेंगे आपसे। आपको कभी ऐसा लगा? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। पर लगी थी ऐसी फीलिंग कभी? तो फर्स्ट से स्टार्ट करूं? जी जी। I started my journey with Ekta. She produced LSD, and उस वक्त We started our journeys together because Alt, the movie company Alt, started with LSD, and I think so did Nusrat. Yes, I did. And उस वक्त नहीं सोचा था मैंने that I would be working with Ekta Kapoor. So you can imagine when I didn't think of it then it was definitely a thought कि ये कैसे होगा. But it happened. And I'm very, very happy that I'm back and working with Ekta again after all these years. I think one of the reasons why I said yes, let's throw this man off stage, was the fact that Ekta was doing this. So that's your first question. Now second, with him. Every single time I have met Ayushmann, he has always been this very sweet, humble person. And then I see him do that on screen and I'm like, how? Like, he just transforms from every film and every character to somebody else. And you're right, somebody said कि पहले मिल जाना चाहिए था. I agree with that. And I remember I was sitting at an award function with him and I said, how are you not winning this award? I'm not going to name that award function. But I told him, I said, why are you not winning an award? So I'm just glad that it's happened. And he said this, that he's happier that they're baby steps and not like a,
chalang. And that's actually true. If you're an actor and you take baby steps, you're able to understand what you're doing right and wrong better. So the fact that he's at this gradual rise like that, I think is amazing. So that's that. I'm really, really happy to be a part of this film with him also. Now Raj. I think when I started, even PKP was a first-time director, Dream Girl first-time director. My third film, Hurdang, is also a first-time director. I don't think it matters, like how Ekta said that it doesn't matter when she thought of Ayushmann, he'll think of who the director is. I don't think I've ever thought of that. I think when I meet somebody and I can vibe with them creatively, and we're at the same plane, and mujhe story, script or sab samajh aata hai, then I trust him with his vision. And I let him do what he's doing, and I know we'll get there. And well, it's proven, right? I think all my decisions so far have come pretty well, and I'm okay. So, Sumit, I think I'm good. Very intelligent. Thank you so much, sir. Shukriya. एकता 25 साल आपके बालाजी के कैसे देखती हैं इन 25 सालों में क्या बदलाव आया विजन में और आपके अपने आप में? See, I was only 5 when I started. So at the age of 30, I have learned. I'm not going to tell you my age. I was hating putting that out that day, that I'm that 25 years of Balaji, because people would pre-calculate my age. But I've learned one thing. There is no formula to success. There is only one way to move forward, and that is conviction. Although in real life I have a very weak gut, at work I always believe, take a brave step forward and trust your gut. Everything else will follow. That's it. And 25 years I've done just that. नितिन एक मिनट. हाँ प्लीज. आयुष्मान आपको लेके लोग हमेशा ही मतलब इंडस्ट्री में भी और वैसे भी लोग असमंजस में रहते थे, पता नहीं भाई क्या करेगा ये. अब आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, तो अब सबके मन में ये दुविधा है कि या तो शायद लोग भयभीत हैं या लोग अब ज्यादा टाइट हो गए. आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं फिर आंसर देता हूँ. सर विचार तो बोलिए ना पूरे. नहीं क्या बोलूँ, मतलब मुझे खुद नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हमें किसी को नहीं पता. लेकिन हाँ, जो आगे जो लाइनअप है काफी इंटरेस्टिंग है. फिलहाल तो ड्रीम गर्ल है, व्हिच इज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बाकी अभिनेताओं के मन में क्या चल रहा होगा वो मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है उनके मन में. डर गए हैं आपको, ऐसा लग रहा है? नहीं मुझे नहीं, मैं कैसे बोलूँ उनके बिहाफ पे. मुझे नहीं लगता डरे होंगे. अब उनसे मैसेज तो आए हैं प्यार भरे. रणवीर का भी आया, रणबीर का भी आया, राजकुमार का भी आया, सबका मैसेज आया है. एंड दे ऑल हैप्पी. कोई डरा नहीं है. रुचिका, वी हैव सीन यू सच एन एंटरप्राइजिंग पर्सन. हमने शुरुआत से आपको देखा है. यू हैव बीन सो डायनामिक इन बिल्डिंग अप द बालाजी मोशन पिक्चर्स ब्रांड. ये जो दिमाग में चीजें आती हैं कि 5 सिटी में एक साथ ट्रेलर लॉन्च करना, ये सब आप ही करती हैं? Hi Sumit, thank you for this first. No, we have a very solid team, yeah, who sits and strategizes. And when I started working with Ekta, I heard she was a marketing guru, so I've only been trying to keep up with that for the last few years. This has got to do with Ruchika and Prabhat and the new marketing guru with us. So there's Urvi, Priyank, Dipesh, Lipika, Rehmat, the whole team who works relentlessly behind all of this. Sorry, we'll have to take everyone's name. They all have been a part of this team. Thank you so much, guys. Because of your 5-city efforts, we get lovely questions like this. And thank you, Sumit. And I think I would like to take other names also. Meet Brothers. पूरी एल्बम उन्होंने की है. एंड ये आजकल रैरिटी होती है क्योंकि सब मिक्स गाने होते हैं. पूरी एल्बम इन्होंने की है, व्हिच इज लाइक वंडरफुल. बहुत अच्छे गाने, बहुत बड़े गाने दिए उन्होंने हमें. थैंक यू सो मच. एंड अक्षत इज देयर एंड निर्माण, संकेत, एवरीबॉडी इज हियर.